Hello and welcome to Kalam IS. This is New Simply Put, dated 18th December 2024. And let's get started. The topics for today are sovereign gold bond scheme and why that could be discontinued. The next is about one nation, one election. And the last is about Arctic tundra, which is emitting more carbon than it absorbs. And that is for the first time. So these are the topics, and these are the clippings from the Indian Express Explained section that can help you locate better. Let's get started. So, the first topic is about Arctic tundra. Now, we know that when it comes to the polar region, it's a very cold region, right? And there, since it is cold, we expect that there is ice and it's all going to be frozen. However, now that we know global warming is prevalent, this is getting warmer. And now this CO2 is increasing. With an increase in CO2, now the ice is melting, right? Now आइस जब मेल्ट करेगी तो नीचे सपोज ये हमारी आइस का लेयर है और ये हमारा पूरा ज़मीन है, राइट? और okay, let me just draw it in a better way. So suppose if this is the entire landscape, this is the land, the soil part, right? This is the ice sheet. Hmm? And the above is the air or the atmosphere. So when this warms up, the ice which is over here, that is going to melt. Therefore, what will happen is that now the ice directly will get removed and this land will be exposed. Now, when this land is exposed, so now it is like any land which is found in the tropical area. And in the tropical area, we all know that there is soil, there are microbes, right? Those microbes, they do their decomposition activities, they release carbon dioxide. So now, when they release carbon dioxide, and the same activity now happens here, so then the air further becomes warm because of the increased CO2. And now this again becomes a vicious cycle because now, since there is more CO2, the air will become even warmer, and now again, a later portion of maybe say this ice will also melt, and then again, this portion of the soil decomposition will take place. When this will take place, then again, you'll have an increase in CO2, and therefore, what will happen? Again, the warming will happen, and this cycle will happen, leading to carbon emissions. Let's understand the article in detail. However, I've given you the basic front line. So, Arctic tundra has transformed from carbon sink to a source of greenhouse gas emissions, right? So, how is this coming from? So, the US agency, which is there for the National Oceanographic and Atmospheric Analysis, they have released a report which says that there is an increase in CO2 and methane emissions. वही बात है कि आर्कटिक की ये सॉइल है, ये उसका लैंड है और उसकी जो ऊपर की आइस है, आइस पिघल रही है. सॉइल के जो माइक्रोब्स हैं जो जनरली एक्टिव नहीं रहते बिकॉज आइस रहती है. ठंड में तो आपको पता ही है, राइट? एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है. जैसे इक्वेटर में आपको पता है कि एक्टिविटी ज़्यादा रहती है बिकॉज ऑफ दी हीट. तो यहाँ पे ठंड थी, आइस थी, तो एक्टिविटी कम थी. लेकिन जैसे ये आइस हट रही है, सॉइल डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है. सॉइल एक्सपोज हो रहा है तो माइक्रोब्स जो कि हैं वो एक्टिव हो रहे हैं. जैसे वो एक्टिव हो रहे हैं तो वो CO2 बढ़ा रहे हैं. वो CO2 बढ़ा रहे हैं हवा की, तो वापस से एटमॉस्फेयर की वार्मिंग बढ़ रही है. जितनी ज़्यादा वार्मिंग होगी, फिर से ये वाली आइस का कवर हटेगा, फिर से ये सॉइल के माइक्रोब्स एक्टिव हो जाएंगे. तो ये साइकिल चलने की वजह से बहुत ज़्यादा CO2 बढ़ गई है. एंड अब जो आर्कटिक टूंड्रा है वो कार्बन सिंक की जगह अब सोर्स बन चुका है. सोर्स और सिंक का मतलब इज क्लियर, राइट? सिंक, सोर्स का मतलब जहाँ से जनरेशन हो रहा है, नाम में ही क्लियर है. एंड सिंक मतलब जहाँ सब कुछ जाता है, जैसे सारा चीज़ काइंड ऑफ सेटल्स डाउन, राइट? सो सोर्स बनना मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन होना. सो वही बात कर रहा है. आर्कटिक में भी अब सोर्स आ गया है. आर्कटिक इज़ नो लॉन्गर अ सिंक. एंड ऐसा भी माना जाता है कि जो आइस है उसका एल्बिडो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. तो अगर 100 यूनिट्स ऑफ सनलाइट आइस पर गिर रही है तो 99 के आसपास रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और केवल 1 यूनिट ऑफ हीट बचेगा. हालांकि जो नॉर्मल हमारा बाकी जगह पे जैसे सॉइल हो गया, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, पेड़ हो गए, वहाँ पे एल्बिडो काफ़ी ज़्यादा रहता है कि अगर 100 यूनिट्स आपकी सनलाइट आई तो शायद 40-50 के आसपास अब्जॉर्ब हो जाएगी और वापस केवल 40-50 के आसपास जाएगी. तो यहाँ पे हीटिंग बढ़ गई ना, एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जहाँ पे केवल 1 यूनिट से हीटिंग बढ़ी. तो अभी जब ये आइस भी चली जाएगी तो ये एल्बिडो वाला काम भी चला जाएगा. तो यानी कि अब वो जो पोलर टूंड्रा था जो अब ठंडा रहता था बिकॉज वो हीट अब्जॉर्ब नहीं करता था,
अब वो भी अब्जॉर्ब करने लग जाएगा, तो और भी ज़्यादा फिर वहाँ पे हीटिंग बढ़ेगी, फिर से आइस पिघलेगी, फिर से माइक्रोब्स एक्टिव हो जाएंगे, डिकम्पोजिशन ज़्यादा करेंगे, फिर से CO2 प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से अब क्या हो रहा है कि क्योंकि आइस पिघल रही है इसलिए CO2 बढ़ना शुरू हो गई है। सो दिस इज व्हाट द रिपोर्ट इज ट्राइंग टू से। आगे लेट्स अंडरस्टैंड द आर्कटिक वार्मिंग इज 4 times फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। सो इसे आर्कटिक एम्पलीफिकेशन कहते हैं। दिस इज क्वाइट अ वेरी कॉमन टर्म विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स फॉर दैट मैटर। सो एम्पलीफिकेशन पहले कहते थे कि डबल द टाइम्स है, कि अगर हमारा सपोज हम लोग इंडिया में है, इंडिया में टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री हो गया है, तो ये 2 डिग्री का राइज हुआ है। आर्कटिक में ये बेसिकली 8 डिग्री का राइज होगा। तो जो भी टेम्परेचर है, सपोज 0 डिग्री अगर उनका रहता था, अब उनका 8 डिग्री से नॉर्मल टेम्परेचर, विच इज़ अ ह्यूज चेंज, विच इज़ वेरी ड्रामेटिक। सो इसलिए 2024 में इट रिकॉर्डेड द सेकेंड हाइएस्ट एनुअल सर्फेस एयर टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? अब वही है थॉइंग परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट अगर हमें समझना है तो इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। परमा मतलब परमानेंट एंड फ्रॉस्ट मतलब वही आइस। तो परमाफ्रॉस्ट जो परमानेंट आइस है वो थॉ हो रही है, यानी कि वो पिघल रही है। तो वही सिंपल बात, ये जैसे मैंने आपको बताया ये लैंड है, राइट, और यहाँ पर वो आइस है, ये परमानेंटली फ्रोजन एरिया है। अब ये थॉ करेगा यानी कि ये पिघलेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये हट जाएगा और सीधा लैंड एक्सपोज हो जाएगा। लैंड एक्सपोज होगा, फिर से वही एक्टिविटी, माइक्रोब्स एक्टिव हो जाएंगे, CO2 ज़्यादा हो जाएगा, फिर से एयर ज़्यादा गर्म हो जाएगी, फिर से गर्मी बढ़ेगी यानी कि एक्टिव एम्प्लीफिकेशन होगा, फिर से जो बची कुची आइस है वो पिघलेगी, फिर से लैंड आएगा, द सेम थिंग। तो वही thawing permafrost activates microbes that decompose organic matter. Now I think this line is clear to you, right? This decomposition results in the release of CO2 and methane into the atmosphere. I think this entire process, which they have explained in 2-3 lines, should now be clear, right? If there is still some lack of clarity, you can put it in the comment box. We can take it further too. Increased wildfire. The Arctic has seen a rise in the frequency and intensity of wildfires. Right? तो पहला तो मैंने बता दिया कि परमाफ्रॉस्ट पिघलने की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा क्या है, वाइल्ड फायर्स भी एक रीज़न है। अब आपको पता है वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं जैसे यहाँ पर है, तो अब यहाँ पे CO2 के कितने कितने पार्टिकल्स और पार्टिकुलेट मैटर जमा होंगे। फिर से अब जब एयर में पार्टिकल्स जमा होंगे, CO2 आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर से गर्मी बढ़ेगी, फिर से वही चीज़ें होंगी कि एयर टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर से बर्फ़ पिघलेगी, मेल्टिंग होगा, and the same process will happen. So there are various reasons why the temperature is increasing, and due to which the permafrost is melting, and due to which then again there is an increase in CO2, which further leads to an increase in temperature. पहला तो उन्होंने बता दिया आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, अब बता रहे हैं वाइल्ड फायर्स एज अ सोर्स, right? So Arctic has seen an increase in the frequency and intensity of wildfires, like I've said. 2023 में सबसे वर्स्ट wildfire हुआ था, right? तो इससे क्या होता है, कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो आर्कटिक सॉइल स्टोर 1.6 trillion metric tons of carbon, right? This amount is nearly the double the existing atmospheric carbon levels, right? तो इतना ज़्यादा अगर उसके पास स्टोरेज है, तो अगर सब कुछ परमाफ्रॉस्ट जो है वो थॉ करना शुरू हो जाए, वो मेल्ट करना शुरू हो जाए, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना जो स्टोरेज है वो रिलीज हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई अभी वो सोर्स बन जाएगा, राइट? रादर देन बीइंग अ सिंक, नाउ इट इज़ बिकमिंग अ सोर्स, बिकॉज उसने अपनी आइस के नीचे काफ़ी कार्बन दबा के रखा हुआ है, राइट? ये कार्बन दबा हुआ कैसे है? तो जैसे अगर हम ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, तो जहाँ पे हम देखते हैं पेड़ है, पौधे हैं, तो वो CO2 लेते हैं सन से। जब ये लोग डाई कर लेते हैं तो इन पे डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं, डिकम्पोजिशन होता है, और फिर जब डिकम्पोजिशन होता है तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और वापस से CO2 एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो ये तो नॉर्मल साइकिल चलती है, राइट? आर्कटिक में ऐसी साइकिल चल नहीं पाती, क्योंकि सपोज जो प्लांट्स हैं या जो भी वहाँ पे वेजिटेशन है, उनकी जब डेथ हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे वो बर्फ़ की लेयर के नीचे दब जाते हैं। बर्फ़ की लेयर के नीचे दब जाते हैं तो अब वो डिकम्पोजिशन हो नहीं पाता। क्योंकि डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, इसलिए वापस से एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज़ नहीं हो पाता। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये सिंक है, क्योंकि CO2 ले तो लिया प्लांट्स ने, लेकिन एटमॉस्फेयर में वापस नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे आइस आ गई। यहाँ पे आइस आ गई तो डिकम्पोजिशन हो नहीं पाया। लेकिन जैसे ये आइस ख़त्म हो जाएगी तो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर CO2 रिलीज़ हो जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट इट इज सेइंग, स्टोरेज आपको अब समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है, कैसे उनके पास, आप सोचोगे कि इतना ज़मीन के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है, ठीक है? सो बेसिकली वही बोल रहा है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एमिशंस, द टूंड्राज शिफ्ट टू कार्बन सोर्स कुड एग्जैगरेवेट क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली और ज़्यादा
तेज़ी से कार्बन रिलीज़ होगा तो क्लाइमेट चेंज पे और ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हम इस ट्रेंड को रिवर्स कर पाएँ। हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने पड़ेंगे, राइट? वही बोल रहा है, अर्जेंट एक्शन इज टेकन टू मिटिगेट दिस, एंड दिस इज द ट्रेंड ऑफ द रिलीज इन द कार्बन emissions, and for this you need collaboration. So this is what the article is. Let's go to the next one nation one election proposal, right? So in this article basically the author is trying to explain the fact that अभी लोकसभा में आपको पता ही है विंटर सेशन चल रहा है 20 दिसंबर तक, तो 17 दिसंबर को एक बिल आया, राइट, जो कि 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। उस बिल में ये बात करी गई है कि अब हम जो हमारे लोकसभा यानी कि सेंट्रल और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट करेंगे, राइट? और इसके लिए उन्होंने एक नया आर्टिकल 82A इंट्रोड्यूस किया है। 82 अगर आपको याद हो तो वो डिलिमिटेशन कमीशन का आर्टिकल है। अब उन्होंने इसके ऊपर एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया है 82A। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सारे एक साथ करेंगे, एंड अगर सपोज आप मान के चलो सपोज 2024 में सेंट्रल का इलेक्शन हुआ है, राइट, और नेक्स्ट 2029 में होना चाहिए, हाँ, और अब सेंट्रल का और बाकी स्टेट्स का भी 2029 में होगा, तो यानी कि 5 साल बाद हो रहा है। बट जस्ट सपोज कि यहाँ पे 2027 में कोई एक नया सपोज स्टेट यूपी का स्टेट का इलेक्शन होता है, तो एज ए नॉर्मल साइकिल तो इनका 2032 में होना चाहिए, राइट? बट क्योंकि हमें ये वाली प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करना है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इनको बोलेंगे कि आप केवल 2 साल तक ही रहो और आपका भी अब इलेक्शन 29 में ही होगा। तो वो कहना ये चाह रहा है इससे कि आप एडजस्ट कर सकते हो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस को, उनकी साइकिल को भी, कि अगर किसी जगह पे ऐसा होता है कि हमने अपॉइंट किया स्टेट गवर्नमेंट को और हमें अलाइन करना है, तो हम केवल उनको रिमेनिंग टर्म के लिए ही देंगे, पूरे फुल फ्लेजेड टर्म के लिए नहीं देंगे। तो इस तरीके और भी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें लाई हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज 2024 में हमारी सेंट्रल लोकसभा का इलेक्शन हुआ और बीच में का सपोज नो कॉन्फिडेंस मोशन 2026 में ही हो जाए, तो फिर हम वापस से इलेक्शन तो कंडक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2029 में अब नया होगा ना, क्योंकि 3 साल तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार नहीं रहे। तो इस सिचुएशन में भी बेसिकली बिल में ऐसा बोला गया है कि 2026 में तो हम एक नया इलेक्शन कंडक्ट करेंगे ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि अब ये 2031 तक सरकार चलेगी। इसका मतलब ये है कि अब जितना 3 पीरियड्स रिमेनिंग है उतनी के लिए ही चलेगा, और 2029 में वापस से फ्रेश इलेक्शन जो हमें करने थे पहले से वो होके ही रहेंगे। सो वही बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्लॉजेस डाले हैं, किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, किस तरीके से एडजस्टमेंट्स रहेंगे, ये सारी बातें इस बिल में की गई है। सो लेट्स जस्ट स्टडी व्हाट इट इज़। तो इट बेसिकली अमेंड्स 3 आर्टिकल्स एंड इंट्रोड्यूसेस आर्टिकल 82A। सो व्हाट आर द अदर 3 आर्टिकल्स? दे आर 83, 172 एंड 372। These are the articles that are being basically introduced, and यहाँ पे अमेंडमेंट होगा। और अब ये भी बात सोचिए, अब जब आपने एक चैप्टर अमेंडमेंट पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में पॉलिटी का, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि 3 टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं, एक सिंपल मेजोरिटी वाला, एक स्पेशल मेजोरिटी वाला, और एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, राइट? तो यहाँ पे क्योंकि ये फेडरल चीज़ को चेंज करना चाह रहा है, तो यहाँ पे रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो ये जब बिल पास होगा तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी रैटिफिकेशन स्टेट्स के बीच में वो डिसाइड करना पड़ेगा क्या होगा। एंड आगे ये बोला जा रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस विल नॉट इंक्लूड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। तो आपको पता है 3 लेवल्स पे हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, तो ये लोकल वाले को इंक्लूड नहीं करेगा, राइट? और वैसे तो उन्होंने बोला है 2029 में ट्राई करेंगे, लेकिन 2034 का उन्होंने साइकिल दिया है। सो द अर्लीस्ट पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन इज 2034। हाउएवर 29 का ट्राई कर सकते हैं, कैसे सिचुएशन बनती है। आर्टिकल 82A के हाइलाइट्स क्या हैं, राइट? सो न्यू क्लॉज इनेबल साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, राइट? एंड इट इज इलेक्शंस टू असेंबलीज फॉलोइंग द अपॉइंटमेंट डेट विल एंड द लोकसभा टर्म, राइट? इलेक्शन कमीशन का भी इसमें रोल दिया गया है कि वो कंडक्ट करेंगे इलेक्शंस को, एंड कुछ कुछ जगह पे ईसीआई चाहे तो डेफर भी कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है, ईसीआई अगर चाहे, उनको लगे कि कुछ स्टेट्स में हमें डेफर करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला ना कि 2024 में है, फिर 2029 में है, हाँ,
और यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों के होंगे। यहाँ पे आप कितने सारे स्टेट्स है, 28 स्टेट्स, आपको पता ही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सपोज कुछ एक स्टेट में हम नहीं कर पाए इलेक्शन, तो इसकी पावर किसको दी गई है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। वो डिसाइड कर सकता है कि अगर हमें चेंज करना है, आगे पीछे करना ही नहीं करना, राइट। सो इन दैट सेंस दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट बॉडी। यूपीएससी प्रीलिम्स में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड, राइट, या फिर कुछ भी ऐसे करके बना सकते हैं आपके फैक्चुअल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। सो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ सच थिंग्स, राइट। मिड टर्म कॉज, मिड टर्म का क्या है कॉज? तो वो बोल रहे हैं कि सपोज हमें इन केस ऑफ अ अर्ली रेजोल्यूशन, राइट, द नेक्स्ट टर्म वुड बी फॉर द रिमेनिंग पीरियड ओनली। जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था कि अगर 2024 में हुआ है एंड 2029 में दोबारा होना है, लेकिन 2026 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो जो नई सरकार आएगी वो केवल 3 साल के लिए ही आएगी, राइट। सो द न्यू इलेक्शंस विल कवर द अनएक्सपायर्ड टर्म्स। सो दिस इज द थिंग अबाउट इट। स्टेट असेंबलीज पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? तो सिमिलर अमेंडमेंट्स इन आर्टिकल 172 फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर was envisaged. Elections for the dissolved assemblies will be for the unexpired terms. And so, what is the final conclusion? It states that the proposals reflect the recommendations from the high level committee on one nation, one election, and this requires a special majority, right, in both Lok Sabha and Rajya Sabha. So, this is about the article. The next part is about the sovereign gold bond scheme. तो ये स्कीम बेसिकली 2015 में आई थी, राइट, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो कि हैं उनको डिनोमिनेट किया गया था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, राइट। सो व्हाट इज़ इट ट्राइंग टू से? ये आया इसलिए था क्योंकि आपको पता है जैसे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, बिकॉज ऑफ गोल्ड एंड बिकॉज ऑफ ऑयल, बेसिकली क्रूड ऑयल, राइट। तो हमने बोला कि क्यों हम अपना इम्पोर्ट गोल्ड का कम नहीं करें, लेट्स जस्ट ट्राई दैट। हमने बोला कि अगर लोगों को गोल्ड खरीदना है तो वो लोग हमें गोल्ड के पैसे दे दे और हम एक पेपर बना देते हैं, उस पेपर की वैल्यू हम गोल्ड के इस हिसाब से रख देंगे। तो अगर आज उन्होंने हमें 1 किलो गोल्ड का पैसा दिया है तो हम उन्हें पेपर दे देंगे और उन्हें गोल्ड नहीं देंगे, और इस पेपर की कीमत को हम गोल्ड से अलाइन कर देंगे, राइट। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, सिमिलरली इस पेपर का भी प्राइस बढ़ेगा घटेगा। और उनको जैसे फाइनली एक बार अपना गोल्ड जैसे हम रखते हैं ना कुछ सालों के लिए, फिर उसे छोड़ देते हैं, उसकी वैल्यू कैपिटल गेन्स को रियलाइज करते हैं, उसी तरीके से इस पेपर को भी अगर लोग चाहें कि वापस से कन्वर्ट करना है मनी में, सो द with the same amount of value which the gold has, in that same amount this paper can be converted back to money. तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? आपको गोल्ड रखना नहीं पड़ा फिजिकली, लेकिन आपको उसके सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल गए। सो दिस वॉज द इनिशियल एसेंस कि हम लोग गोल्ड के सारे बेनिफिट्स लोगों को दे दें विदाउट इम्पोर्टिंग गोल्ड। इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि है वो घट जाएगा, क्योंकि हम सारे गोल्ड इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया के पास खुद इतना गोल्ड है नहीं। इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो हमारी बीओपी में भी थोड़ी अच्छी पिक्चर बनकर आएगी। और इन सब चीज़ों के लिए एलिजिबल कौन था? एलिजिबल जैसे होता ही है, ऑल इंडिविजुअल्स एंड इंडियंस आर एलिजिबल। एंड यहाँ पे बेसिकली 4 किलो के आसपास कुछ थी कि 1 ग्राम गोल्ड आप मिनिमम ले सकते हैं एंड 4 kg गोल्ड आप मैक्सिमम ले सकते हैं, राइट। एंड ये अब उन्होंने ऐसा भी बोला कि जब आप सपोज पैसे देते हैं तो जो पेपर है ना वो बॉन्ड होगा, और वो बॉन्ड ऐसा है कि आपको 8 साल तक रखना पड़ेगा। अगर आपका मन है तो आप 5 साल के बाद इसको कन्वर्ट करवा सकते हो, लेकिन उससे पहले आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है ना कि मैंने पैसे दिए हैं सपोज 1 लाख रुपए और 8 साल या 5 साल बाद सपोज गोल्ड की कीमत 2 लाख रुपए हो गई है, तो आपको लग रहा है कि चलो 2 लाख रुपए उठा ही लेते हैं, क्या उसको गोल्ड में रखना है। सो आप 5 साल बाद तो कन्वर्ट करवा सकते हो, बट उससे पहले आप नहीं करवा सकते। और अगर आप ऐसे ही गोल्ड को रखे रहोगे 8 साल तक, राइट, तो जैसे होता है ना हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलता है आफ्टर आवर इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे भी हमें उसको 8 साल के रखने का कुछ इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। ऑफकोर्स विद द कैपिटल गेन्स विल ऑल्सो बी रियलाइज्ड, बट दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द स्कीम। अब गवर्नमेंट इस स्कीम को बेसिकली वाइंड अप करना चाहती है। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। की फीचर्स वही है कि 2.5% का आपको मिलता है इंटरेस्ट रेट, 8 साल का जैसे मैंने बताया मेच्योरिटी पीरियड भी रहता है। एंड इसका प्राइस जैसे मैंने बोला ना कि गोल्ड से वो लोग अलाइन करते हैं, तो एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड 999 प्योरिटी के बेसिस पर होता है, राइट, फ्रॉम द लास्ट 3 बिजनेस डेज। तो ये एक बेंचमार्क बताया है उन्होंने। बेनिफिट्स वही हैं यहाँ पे, जैसे जो थेफ्ट एंड फिजिकल स्टोरेज कॉस्ट है
उसकी चीज़ बच जाती है, लोगों के घर में बहुत चोरियाँ हो जाती हैं, तो कितना हम सुनते हैं कि इतना गोल्ड चोरी हो गया। इन्वेस्टर ऑल्सो रिसीव्स द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड एट रिडेम्पशन, राइट? जैसे मैंने बोला ना, जो मार्केट वैल्यू है और इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये जो प्रिंसिपल है ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलता है, तो आपको फ़ायदा तो मिलता ही है। लेकिन गवर्नमेंट क्यों डिसकंटिन्यू करना चाह रही है? बिकॉज फाइनेंसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और मार्केट काफ़ी चेंज हो गई है। फाइनेंसिंग कॉस्ट मतलब जो फिजिकल डेफिसिट हो रहा है उसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है। रीसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी कट्स ऑन गोल्ड हैव ऑलरेडी इंक्रीज द डिमांड, रिड्यूसिंग द रिलायंस ऑन SGBs। तो जैसे मैंने बोला, हम गोल्ड इम्पोर्ट करते हैं ना, तो उस इम्पोर्ट में 3-4 चीज़ें लगती हैं। इंडिया में आने से पहले पहले तो जो बाहर सपोज़ गोल्ड का प्राइस 100 रुपये है, तो हमें सीधा 100 रुपये का नहीं मिलता, हमें कुछ टैक्सेस ड्यूटीज़ पे करने पड़ते हैं। सपोज़ 15 रुपये का टैक्सेस है तो इंडिया में 115 का होगा। लेकिन कल को अगर ये 2 रुपये हो जाए तो कल 102 रुपये का मिलेगा इंडिया में, तो आपको नहीं लगता कि 102 में लोग ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, 115 में कम खरीदना चाहेंगे, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, तो लोग कहेंगे गोल्ड ही खरीद लो, क्यों ही हमें बॉन्ड खरीदना है, राइट? साथ में इंडिया में जो गोल्ड रखते हैं लोग, वो इसलिए रखते हैं बिकॉज दे वांट टू कन्वर्ट देयर ब्लैक मनी टू वाइट मनी। सो नाउ व्हेन द इम्पोर्ट ड्यूटी इज रिलीज्ड एंड इट्स रिड्यूस्ड, पीपल हैव मोर ऑफ एन इंसेंटिव, बिकॉज अगर वो बॉन्ड खरीद लेंगे तो फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि ये ब्लैक मनी कहाँ से आया है, उनको उसे वाइट मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी ये काफ़ी काम बढ़ जाएगा उनके लिए, तो स्कीम अनअट्रैक्टिव बन गई है। हिस्टोरिकल इश्यूज़ क्या हैं? रिडक्शन तो हमें मिला ही है, पहले ये लोग 10 ट्रांचेस पर ईयर निकालते थे, अब जस्ट 2 ट्रांचेस पर ईयर निकाल रहे हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल स्ट्रेटजी भी चेंज हो गई है, राइट? तो इन सब रीजंस की वजह से हम सोच रहे हैं कि डिसकंटिन्यू करें। नोटेबल रिटर्न्स भी हैं, तो जब हमने सीरीज़ 1 में इन बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था, तब क्या दिखा था? SGB सीरीज़ 1 मोर देन डबल्ड इन वैल्यू ड्यूरिंग इट्स टर्म, डेमॉन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। Government has reduced SGB insurances from 29,000 crore to 18,000 crore in recent budgets. So these are the changes also that have been seen. सो गोइंग फॉरवर्ड इसीलिए हमने सोचा है कि कोई अब नया इशू नहीं होगा, इस साल हुआ भी नहीं है, एंड आगे हम स्ट्रेटेजिक फोकस कर रहे हैं ऑन रिड्यूसिंग द नेट बोरोइंग्स। सो वही बोल रहा है कि हम इसको रीअसेस कर रहे हैं कि क्या हमें एज ए इन्वेस्टमेंट टूल्स को रखना है या नहीं रखना है, एंड हमारी फिजिकल प्रायोरिटीज़ और मार्केट कंडीशंस को देख के ही नए डिसीजंस बनेंगे। आजकल गवर्नमेंट एक नया इनिशिएटिव लाई है, डिजी गोल्ड। So you should read this, and you will realize that sovereign gold bond हटने के बाद अब इस चीज़ की ज़्यादा प्रीवेलेंस बढ़ गई है। So that is it for today. Let's see the PYQ. What is the purpose of sovereign gold bond scheme? इसी हम टॉपिक पे डिस्कस करें हैं. I want you to solve this and get back to me in the comment box and use the tricks we have been using and learning so far, and I'll let you know the answer tomorrow. The PYQ for mains is that how do the melting of Arctic ice and glaciers of the Antarctic differently affect the weather patterns and human activities on Earth? Explain this. Please put your answers on the Telegram channel or wherever you feel comfortable. We'll be happy to give you